Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And listeners who will be calling us from outside Delhi will have to prefix the Delhi code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। सवालों के जवाब देने और कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Thank you, Vishal. Inflation and wholesale price index WPI hit a 5-month high at 12.57% in October. Sensex and Nifty gained marginally amid positive global cues, and Brent crude prices fall amid increasing oil supply and COVID-19 cases in many countries. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में 5 माह के उच्चतम स्तर 12.57% पर पहुंची। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त और कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने और कई देशों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। सबसे पहले अब बात करते हैं सेंसेक्स की। प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली तेजी से अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुए। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में कारोबार सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स 60,700 से ऊपर और निफ्टी 18,100 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.05% की वृद्धि से 32 अंक चढ़कर 60,719 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.04% की वृद्धि से 18,109 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.41% की बढ़त रही। स्मॉल कैप मिड कैप कृपया इसको दोबारा सुन लें। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.19% की गिरावट रही। The Sensex and the Nifty today added marginally to close almost flat. Both equity indices gained amid positive global stocks, which were trading in a narrow range. The Sensex closed above 60,700 and the Nifty ended above the 18,100 level. The BSE Sensex climbed 32 points or 0.05% to finish at 60,719. The NSE Nifty rose 7 points or 0.04% to end at 18,109. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.41% while the small-cap index fell 0.19%. In the Sensex pack, shares of 16 companies gained while 14 logged losses. Power Grid was the top gainer as it surged 3.5%, followed by ITC, which gained 2.1%. Nestle India climbed 1.5% and Asian Paints surged 1.4%. On the other side, Tata Steel plunged 3.2% and Mahindra fell 1%. Bajaj Auto and SBI both declined 0.9%. In sectoral indices, 10 out of the 19 sectors logged gains. Healthcare sector stocks gained the most, adding 2.1%. Fast-moving consumer goods sector stocks gained 0.8%, and consumer durables rose 0.6%. On the other side, metal plunged 2.4%, basic materials declined 0.9%, and telecom fell 0.7%. The overall breadth of the BSE
trade was negative as shares of 1,279 companies gained while 2,141 fell. Shares of 156 companies remained unchanged. And we already have our first listener on call with us. This is Anil Ahuja from Delhi. Anilji, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, the panelists. My question is, what is the future of government banks shares? Because NPS is getting down quarter to quarter. So my query is it good to have government bank shares? Please answer. Thank you. Overall, the banking sector is likely to be a strong sector. There is disinvestment that is taking place which is planned for the PSU banks. Also, the insolvency and bankruptcy code that has come in is improving the situations of the given NPAs that are going on. So overall, there has been some structural changes which are bringing about a positive value direction to the banking stocks, especially the PSUs. जी, और हमारे अगले कॉलर हैं जितेंद्र भोपाल से। हेलो जी, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। जी, गुड इवनिंग। सवाल पूछिए अपना जितेंद्र जी। सवाल सर ये है कि अगर AMO जो ऑर्डर होता है सर जी, तो उसको अगर हम मान लो कि 5 बजे बुक करते हैं और अगर वही ऑर्डर 8 बजे बुक करते हैं तो उसका रेट सेम होता है सर? आप AMO ऑर्डर के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी मैम। जी, आप AMO ऑर्डर के बारे में और कुछ खुलासे के साथ बता सकते हैं कि एक्चुअल होता क्या है? AMO जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, मान लो हम 4 बजे उसको ऑर्डर बुक करते हैं, अगर कोई बंदा 8 बजे उसको बुक करता है तो जो 9:15 के बाद जो मैच होगा तो बराबर में होगा या मेरा कम में हो जाएगा, कम रेट में? इसके बारे में जी, जिस ऑर्डर पे आप रेट बुक करेंगे उसी ऑर्डर पे आपका रेट एग्जीक्यूट होगा। अगर जो मार्केट का डिटरमिन रेट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस रेट से अगर आपका हायर ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है, उस पे वो बुक नहीं किया जाता। And next in queue we have Mr. Satish from Delhi. Mr. Satish, welcome to the program. Please ask your question. मैडम, जैसे अभी पहले थोड़े टाइम तक सभी आप लोग बोलते थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो गैर कानूनी है, मान्य नहीं है, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2022 में सभी बैंक ये इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। इसका भी टाइम आने वाला है। मैडम, ये बताइएगा। धन्यवाद। जी, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी। जहां पे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो खास तौर पे आरबीआई की आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक है वो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड ना करें और जो भी करें वो ध्यान से करें, क्योंकि इन क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी इंट्रिंसिक वर्थ नहीं होती। In fact, the Prime Minister held a meeting just day before yesterday with, members of the RBI and Home Ministry as well, and the Finance Ministry on the cryptocurrency situation in the country. So I think we'll get to know in the coming few days, what is exact situation, what the government and the dispensation thinks, what is their stand on the cryptocurrency. Especially on their advertising as well as on their trade. जी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसी खबरें हैं कि वह इस साल के आखिर तक या अगले साल डिजिटल करेंसी लाने के बारे में विचार कर रहा है। जी बिल्कुल, डिजिटल करेंसी एक अलग माध्यम है क्रिप्टो करेंसी के, और डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। जी, और अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज रुपया 4 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 49 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की प्रमुख 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11% की गिरावट से 95.02 पर कारोबार कर रहा था। And we already have our next listeners on line for us, but before that we'll take a short commercial break and we'll touch base with them after we get back. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra, and let's get on with what's happening in the Asian markets with Vishal.
जी, एशियाई बाजारों की बात करें तो निवेशकों के सतर्क रुख के चलते एशियाई शेयर बाजार आज तेजी के बावजूद सीमित दायरे में कारोबार करते दिखे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% चढ़ा और जापान की निकेई में 0.6% की तेजी रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की बढ़त में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों में भी सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार देखा गया। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% फिसल गया। फ्रांस का कैक 0.4% और जर्मनी का डैक्स 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। And now we have online with us Pankaj from Mumbai. Mr. Pankaj, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, Market Manchate. I just heard about privatization of public sector banks and oil companies also. We're talking about privatization. Should we invest in these companies which are about to be privatized? Do we get a better return in long term just because these companies, public sector companies, are getting privatized? Well, we did talk about disinvestment, which is there in terms of the companies, which does indicate that there is value in these stocks, and which does bring about a different focus altogether strategically for those who are investing in these stocks. Overall, the banking sector and the oil sector are revenue generating sectors and have been doing well. Given the financial inclusion and the rate of financial intermediation, they do show a positive productivity for the stocks which are likely to give value in future. जी, दिल्ली से हमारे एक और श्रोता हैं भारत भूषण फोन लाइन पर। हेलो जी, भारत भूषण जी, कार्यक्रम में स्वागत। हाँ, विशाल सर नमस्कार और यामिनी मैडम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सवाल पूछिए अपना। जी पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि जो कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आता है फाइनेंशियल ईयर का, तो कंपनी की ग्रोथ रेवेन्यू बढ़ रही होती है, टर्नओवर बढ़ रहा होता है, बट उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होता। नेट इनकम और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? टर्नओवर बढ़ रही है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर, ये हम उम्मीद रख सकते हैं? धन्यवाद। जी देखिए, जब भी रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो सेल्स इनटू प्राइस होती है। उसके से जब कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके प्रॉफिट्स आते हैं। कभी कभार आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा होती है, तब आपको लॉसेस इनकर होते हैं और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होते। क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं वो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं एक कंपनी के कि उन्होंने कितने सेल्स किए या कितने ग्रोथ किए। जब टर्नओवर्स की बात करेंगे तब आपको नजर आएगा कि टर्नओवर्स में ग्रोथ है, पर ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि कॉस्ट किसी वजह से इंक्रीज हो गई है। Now, before we connect with the next caller, let's take a look at another news. Inflation in wholesale prices index, WPI, hit a 5-month high of 12.54% in October, rising significantly from 10.66% in September this year. WPI rose led by rise in the prices of fuel and power, vegetables, oils and chemicals. According to the Commerce and Industry Ministry data, wholesale fuel and power inflation shot up to 37.2% in October from about 20% the previous month, while manufactured products inflation hardened to over 12%. The WPI inflation remained in double digits for the 7th month in a row. And now we've been joined by one of our regular callers, Atanu Saha from Kolkata. Mr. Saha, welcome to the program. Good evening to everybody. My first question is, what is inflation? My second question related how government manage inflation. My third related how public beat inflationary measurement. My last question, what is? जी, आपका पहला सवाल इन्फ्लेशन। सस्टेन्ड कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब आप कंटिन्यूअसली प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखते हैं जनरल कमोडिटीज के अंदर, तो उसे महंगाई का दर कहते हैं। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए
सरकार के पास और जो सेंट्रल बैंक है उसके पास काफी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जहां पे रिड्यूस्ड मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जहां तक आम आदमी की बात है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं और कुछ ऐसी नीतियां भी अपनाते हैं जिससे जो उनके आगे आने वाले रिटर्न्स हैं वो जो बढ़ता इन्फ्लेशन है उसको कम कर सके, जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ा देना या फिर ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना जिनका रिटर्न इन्फ्लेशन से कहीं अधिक हो। इक्विटीज जैसे निवेश करने के तरीके होते हैं। And now we have Mr. J.S. Saluja from Delhi, who's joining us on the call. Mr. Saluja, welcome to the program. Please ask your question. Good evening to the entire team and Yamini ma'am. My question is that please tell name of 2-3 sites or even one site from where we can see the technical chart with volume and also the candlestick pattern also, because I am finding it very difficult to see, although everybody is discussing it. But we don't know how to see from where we have to see the chart. Thank you. जी, यहाँ पे आपको एक किसी भी साइट का नाम देना शायद मुमकिन नहीं होगा, तो अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स करके करेंगे तो आपको साइट्स मिल जाएंगी जिसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स आते हैं। काफी सारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनकी भी साइट्स पे आपको ये जानकारी अवेलेबल होगी। जी, दिल्ली से ही गौतम फोन लाइन पर हैं। हेलो गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। माय क्वेश्चन इज विद द ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद दिस पेट्रोल, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिस्टिलरी कंपनी? जी, जहां तक देखा गया है इथेनॉल का ओवरऑल फायदा जो है असर करेगा इकोनॉमी पे। एक तो पेट्रोल की कंजम्पशन को जो है मद्देनजर रखते हुए जो उनकी प्राइसेस है वो सप्लाई बढ़ने की वजह से कम हो सकती हैं, और जो है दूसरा देखा जा रहा है जो शुगर इंडस्ट्री है उसको काफी हद तक फायदा पहुंचाएगा क्योंकि वो एक उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो इन दो मद्देनजर को रखते हुए जो है इथेनॉल की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अगले कॉलर भी दिल्ली से ही हैं, नंद गोपाल। नंद गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। यामिनी जी नमस्कार। मैं आपसे एक टैक्सेशन के बारे HUF के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या एक विडो जिसकी 3 लड़कियां हैं वो HUF की फाइल चला सकती है HUF के टैक्सेशन में? जी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जिसके अंदर जो करता है वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो भी उसका हेड होता है और जो सारे बिजनेस को या फैमिली के अफेयर्स को हैंडल करता है उसे कर्ता मानते हैं। इसमें डिस्टिंक्शन जेंडर वाइज नहीं होता। And now we have Mr. Rajgopal from Chennai. Mr. Rajgopal, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, ma'am, and Yamini madam. My question is that 1 month back, that is before Deepavali, I think there was one communication from Consumer Affairs Ministry that steps are being taken to reduce the edible oil, namely sunflower oil. So from the market, the retail market, it seems there seems to be no reduction in the prices, madam. Is it really happening? Well, there were steps that were taken to improve upon the imports of the edible oils, primarily to safeguard the interest of the consumers and to ensure that the prices are stabilized for the edible oils. Yamini, we were talking about one of our callers earlier, Mr. Atanu Saha. He asked you about inflation, and today we saw that the WPI inflation figures have come out consistently 7 months when it has been, it has been in double digits, and Friday we saw CPI inflation results coming out. So very quick comment on how challenging it's going to be for the government and the RBI. It is going to be very challenging because the economic growth is on its way and the recovery processes are going on, and at this point if the inflation does not get into control, then steps would have to be taken in order to pull back fiscal stimulus as well as the monetary stimulus which is being given for the economic recoveries, which may mean rate hikes which would be possible, and also constraining fiscal measures which have been taken place in the COVID times. And ये मुद्रास्फीति का दबाव डॉक्टर यामिनी वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। हम इस बारे में आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर
जुड़ गए हैं, लेकिन कॉलर भी हम आपसे बात करेंगे पवन कुमार जी बाद में। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जी, मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। हमीरपुर से हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार फोन लाइन पर जुड़े थे। जी पवन कुमार, प्रोग्राम में आपका स्वागत, सवाल पूछिए। सर जय हिंद सर। जी जय हिंद। सर मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने जो है वो एक म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है जी। उन्होंने जो है वो 3 साल पहले म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनको जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए और कितने समय तक जो है वो कम से कम वो कंटिन्यू रखना चाहिए? जी देखिए, म्यूचुअल फंड जब भी आप लेते हैं तो और निवेश करते हैं, उसकी NAV देख करके आप एग्जिट कर सकते हैं, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अगर जिस पे आपने खरीदा है और जिस पे आप बेचना चाहते हैं, बेचने वाली वैल्यू ज्यादा है खरीदने वाली वैल्यू से, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। अभी समय ऐसा है कि मार्केट सबसे हाई लेवल पर है और NAV ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स की अच्छी हैं। अगर आपको वो अच्छी वैल्यू दे रही हैं तब आप एग्जिट कर सकते हैं, वरना अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि आपने किस लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसके हिसाब से अपना एग्जिट डोर आइडेंटिफाई करें। जी, और आपका निवेश लक्ष्य क्या है, ये भी एक बहुत मायने रखती है ये बात। निवेश आपका लक्ष्य आपका क्या है, निवेश करने से पहले आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये बात मायने रखती है। और म्यूचुअल फंड में कितनी अवधि तक आप रहेंगे ये उसी पर निर्भर करता है। बहरहाल बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। थाने से सुभाष फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम एंड टू मैडम ऑल्सो। मैडम मेरा सवाल ये है कि वेदर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट? Amount received by LIC policy is not taxable under the Income Tax Act. That is a sum assured that you receive. जी, डॉक्टर यामिनी, हम बात कर रहे थे मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की, और ये जो मुद्रास्फीति का दबाव है ये वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। इसके क्या असर आप कोविड के बाद जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, क्या उसको ये कहीं असर कर सकती है ये बढ़ती इन्फ्लेशन? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो यूएस के डेटा और चाइना का डेटा आया है और इंडिया का भी डेटा अगर देखें तो इन्फ्लेशन का काफी हद तक प्रेशर है सभी मॉनेटरी एजेंसीज पे और सेंट्रल बैंक्स पे, जिसके तहत उनका जो इंटरेस्ट रेट की तरफ रुख रहा है कम रहने का, उसको वो बढ़ा सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट के दरों में हम देख सकते हैं कुछ इंक्रीज आए, जिसके तहत लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर है वो कम हो जाएगी और जो निवेश है खास तौर पर, या जो जिस इजी पॉलिसी पे क्रेडिट अवेलेबल हो रहा था वो कम हो जाएगा, जिससे जो इकोनॉमिक रिकवरीज हैं वो थोड़ी सी उनमें स्लो डाउन आएगा। जी, और क्या शेयर बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, इसका असर शेयर बाजारों पे भी पड़ सकता है। अगर बाहर के देश यूएस या और देश जो है रेट्स बढ़ाते हैं तो FIIs का जो रुझान है वो उनकी तरफ बढ़ जाएगा। ये भी देखा गया है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स मार्केट्स में भी एक इंक्रीज रहा है, जिसके हद पे भी अगर हम देखें तो एक रुझान FIIs का उनकी तरफ गया है। ये भी देखा गया है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जब वो व्यू करते हैं किसी भी स्टॉक को, खासतौर पे IPOs या नए स्टॉक्स को, उनके जो डिस्काउंट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। And now we have Dinesh from Noida who has joined us in the program. Dinesh, welcome to the program. Please ask your question. जी नमस्कार यामिनी जी, नमस्कार और सभी टीम को। मैडम एक मेरा क्वेश्चन है कि आज के डेट में कुछ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं, जैसे कि ग्रो या और भी एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो जस्ट जानना चाहूंगा क्या उनको उन तक ट्रेड करना, म्यूचुअल फंड लेना या सब कुछ दिक्कत तो नहीं है? Because they are very convenient and attractive also. So just if you can
give the answer? जी देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो शायद ई कॉमर्स मार्केट के एग्रीगेटर्स हैं, जिनके अभी हाल ही में कुछ आईपीओज आए हैं, और बहुत सारे आईपीओज जो आ रहे हैं वो इस पे बात पे निर्भर करेंगे कि उनका ग्रोथ रेट क्या है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे ही अगर आप निवेश करें और ग्रोथ रेट देख करके निवेश करें तो वो अच्छा रहेगा. Yamini, I think he's also asking about the various apps that are available now in the market, which we use, which consumer can go and, use for investing in the markets. So how reliable are these apps? These apps are reliable as long as they are well from a defined source. अगर वो एक defined source से नहीं है तो आप उनके ऊपर rely ना करें. जी. Let's move on to the next news. Crude oil prices today fell on expectations of increasing supply, while higher energy costs and rising COVID-19 cases are also being seen weighing on demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $81.20 per barrel, while WTI crude prices were at $80 per barrel. Yamini, last week we saw, the oil prices, international prices had gone up to at least $85. They were touching $85 per barrel, but today now we are seeing slight fall. So, good news overall, and given the fact that here also in India we've seen taxes being cut on fuel. Well, yes, overall a good news because it puts lesser pressure on the common man, especially who's suffering from the inflation, and also overall adds on to the value of the economic recoveries. जी, और अब बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने की कीमतों में 25 रुपए की तेजी आई. दिसंबर आपूर्ति वाला सोना 49,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं दूसरी तरफ चांदी का भाव 90 रुपए टूटकर 67,055 रुपए प्रति किलो पर चल रहा था. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना गिरावट के साथ $1,866 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे. आज डॉक्टर यामिनी, सोने में मामूली तेजी है 25 रुपए की. क्या आने वाले वक्त में भी हम सोने में और तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? 50,000 के पार जाता दिख रहा है आपको सोना? जी, तेजी आ सकती है सोने के अंदर. And we have another listener on line with us, Ramesh from Mumbai, but unfortunately because of this paucity of time, so we will not be able to take his call today. Mr. Ramesh, do join us next Monday when we have the phone-in program again. And Dr. Yamini Agarwal, at this point I would like to thank you for coming into studio and talking to and replying to the queries of our listeners. And before we close now, here is a reminder of the headlines. Inflation and wholesale price index WPI hit a 5-month high at 12.57% in October. Sensex and Nifty gained marginally amid positive global cues, and Brent crude prices fall amid increasing oil supply and COVID-19 cases in many countries. And that's it in this edition of Market Mantra. But before we go, once again, thank you so much, Yamini, for joining us on the program. And we'll meet you again tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Vishal and Anubha saying bye-bye. Namaskar. Namaskar.